Hello dear students, in previous lecture we studied about what is motion, what is mechanics and its branches, particle concept, path length and displacement, and also about average speed. Today we are going to learn about average velocity and instantaneous velocity as well as average acceleration and instantaneous acceleration. Let's start. First question is, what is average velocity and average instantaneous velocity? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल. एवरेज वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ displacement of particle or object to the time interval to displaced is known as the average velocity. Is average velocity. Now dear students, let us define displacement in this case. Let at time t1 initial position is x1 and at time t2 final position is x2. This is initial position at time t1, x1 is initial position at time t1 and x2 is final position at time t2. So what is change in position? So change in position is delta x, which is x2 minus x1, which is known as the displacement. Okay, in time delta t, which is t2 minus t1. So now what we can write, average velocity is written as displacement upon time. So displacement means x2 minus x1 by t2 minus t1, which is also written as delta x by delta t. This is our average velocity. Now few points about average velocity. Yes, average velocity is a vector quantity. Vector, because displacement is vector quantity, that's why average velocity is also vector quantity. It has three possibilities for values. It may be positive, negative or zero. Now discuss about its unit बच्चों. Unit क्या हो सकता है? Unit, as we are knowing that unit of displacement is meter and unit of time is second, its unit is meter per second. And the dimensional formula, from unit we can easily make dimension formula. क्या हो सकता है? m0l1t-1. Okay, so this is all about average velocity. What is average velocity? It is the ratio of change in position to the interval of time. Okay, now see, if final position is more than, final position is more than initial position, it means object displaced in either direction, only one direction, its velocity may be positive. But if object displaced in opposite direction to the initial direction, okay, then it may be negative. Or if object comes at same point after its motion, its displacement is zero, so velocity will be zero. Clear? Now let's talk about instantaneous velocity. Instantaneous का मतलब क्या होता है बच्चों? Instantaneous, it means in a short period of time. In short period of time, छोटे से टाइम में हमें जो मिलता है वो होता है instantaneous, तत्कालीन. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तत्कालीन, तुरंत. और सिंघम पिक्चर में क्या बोलते हैं? अभी के अभी. जैसे आपने
ये पेन को गिरा दिया टेबल पे तो आपको आवाज आएगी अभी के अभी। क्या कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा रुक के आई आवाज, थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी? नो, रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ओके, यहाँ पे बच्चों हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, और उसको क्यों चाहिए? व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? So during motion of object or particle, we cannot get any information about velocity at any instant. क्योंकि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग एंटायर पाथ ऑफ इट्स मोशन हमें कोई पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं वेलोसिटी एट एनी instant during motion of particle, or you can write object. Velocity at any instant during motion of particle is called instantaneous velocity. Now tell me how we can get instantaneous velocity. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको टाइम पीरियड स्मॉल लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे टू गेट instantaneous velocity taking time interval very small means to take limit delta t tends to 0 in equation of average velocity delta x by delta t। बच्चों जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, उसके अंदर हमें टाइम पीरियड स्मॉल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैथमेटिक्स के अंदर टाइम पीरियड को स्मॉल लेने की जो साइन है ना, वो है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इसका मतलब क्या होता है कि टाइम का इंटरवल स्मॉल हो रहा है। कितना स्मॉल? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बट नॉट 0। शायद वो ये हो सकता है 0.01 या 0.001 या 0.0001 हो सकता है, या तो 0.000001। बट यस बच्चों, वो कभी 0 नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा v लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो गया बच्चों? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस velocity, or we can write only velocity. So keep this thing in your mind that instantaneous velocity is equal to velocity, but it's not equal to average velocity. Average velocity अलग है ना। average velocity अलग है instantaneous velocity से, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो तो बच्चों पूरा टाइम इंटरवल उसके अंदर आपको काउंट करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम पे बात करनी है। ओके बच्चों, अगर हमें लिमिट का साइन नहीं लिखना है ना, तो हम dx बाय dt लिख सकते हैं। यानी लिमिट जाए डेल्टा जाए तो d खाए, मतलब कि d होता है। ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही शो कर रहा है, बट ये अलग नोटेशन है। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। और बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो v इक्वल टू एक्स डॉट। इसको क्या रीड कर सकते हो बच्चों? दिस इज रीड एज differentiation of position with respect to time। बच्चों इसे क्या बोलते हैं हम? differentiation of position with respect to time। ओके, differentiation क्या हो गया? differentiation ये मैथमेटिकल प्रोसेस है बच्चों। जो आप मैथ्स वाले बच्चों हो, जो आईआईटी इंजीनियर बनने जा रहे हैं, वो लोग तो 11th या तो 12th की मैथमेटिक्स की बुक में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। बट यस, फॉर माय डियर डॉक्टर्स, आपके लिए हम ये डिफरेंशिएशन के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप जरा वो देख लेना, तो आपको भी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि इसको कैसे रीड करेंगे? dx बाई dt, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी,
या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, इसे भी क्या बोलते हैं हम? एक्स डॉट। भाई एक्स डॉट क्यों किया? मतलब कि आपने पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किया। ये डॉट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों सेम है और ये तीनों भी सेम है। ये और ये तीनों इक्वेशन का मतलब सेम टू सेम होता है। प्लीज नोट डाउन। बच्चों आप स्टडी करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को, रेशियो ऑफ चेंज इन velocity to the time interval for change in velocity is called average acceleration। तो जो थियरी हम लिखेंगे प्रीवियस थियरी के फॉर्मेट में ही, तो आपको इजी रहेगा। लेट ए टाइम t1 initial velocity of particle is v1 and a time t2 final velocity of particle is v2। दो टाइम है हमारे पास। इनिशियल टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 है और फाइनल टाइम t2 पे वेलोसिटी क्या है? v2। सो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा t t2 माइनस t1 इज डेल्टा v होगा v2 माइनस v1। तो बच्चों ये हो गया हमारा चेंज ऑफ टाइम एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ टाइम मतलब कि इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम? यस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पे लिखेंगे ए। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ये लिखा जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो बच्चों ये हो गया अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। तो बताइए इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो बच्चों यूनिट यहाँ पे लिखेंगे हम, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यस, m0l1t-2। क्लियर है ना? अब बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। ये एक्सेलरेशन हमें मिलता क्यों है? क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर को बच्चों दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। वी कैन गेट एक्सेलरेशन आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। मतलब कि हमें एक्सेलरेशन तीन तरीके से मिलता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या तो दोनों चेंज हो सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ओके, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का टाइप्स। तो हमें पता चल गया भाई तीन मेथड से मिलेगा, बट उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है बच्चों? उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है अगर v2 बड़ा है। अगर v2 इज मोर देन v1 तो ये हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ओके, मे बी नेगेटिव अगर v2 लेस देन v1 है बच्चों, मतलब कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब ब्रेक लग रही है, व्हीकल पे ब्रेक लग रही है, तो व्हीकल रेस्ट में आएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इसे हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। सपोज इनिशियली व्हीकल रेस्ट में था तो वेलोसिटी जीरो था, अब सडनली हमने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, यानी v2 इंक्रीज हुआ, बच्चों पॉजिटिव होगा।
और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि उसका वेलोसिटी सेम है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम, तो उस कंडीशन में हमें वेलोसिटी क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो ये भी आप याद रखना कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ना तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आप भी मेंशन कर देना। चलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब कि एट ए टाइम। सो एक्सेलरेशन at any instant during motion of particle is called instantaneous acceleration. ओके अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, तो टाइम स्मॉल लेना पड़ेगा। टू गेट इंस्टेंटेनियस acceleration taking time period very small means to take limit delta t tends to 0 in equation of average acceleration। बच्चों ये है हमारा इक्वेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, इसके अंदर हमें टाइम पीरियड स्मॉल लेना पड़ेगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करेंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो नाउ आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये अब जो सारे स्टेप लिखेंगे वो सारे होंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। जस्ट ए, देखो ये एवरेज का साइन निकल गया ना, अब क्या बचा, ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर आपको लिमिट नहीं लिखना है ना तो आप dv बाई dt भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, और आप क्या लिख सकते हो, v डॉट भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे स्टेप्स क्या शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्टेप क्या है बच्चों, ये सारे के सारे स्टेप है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। तो ओनली एक्सेलरेशन, क्लियर। और एक बात बताएं आपको कि अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो v आ रहा है ना वेलोसिटी, वो क्या था, dx बाई dt। यस, तो देखिए हमने v के बदले dx बाई dt लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं बच्चों। इसको एक्स डबल डॉट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्स डबल डॉट। तो ये भी हमें क्या शो करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब ये सारे इक्वेशंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को शो करते हैं। ओके देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिला हमने, कि भाई हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन किया। वेलोसिटी कैसे मिला हमें, हमने पोजीशन का डेरिवेशन किया है ना। तो अब जरा इतना देखिए कि अगर आपको एग्जाम में पोजीशन गिवन है, आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा किस तरह से, dx बाई dt से। चलो आप फिर से क्या करोगे, एक्सेलरेशन लाओगे, अगर आप करोगे dv बाई dt। तो आप देखिए जब आपने पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेशन किया क्या मिला आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेशन क्या मिला आपको, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये पोजीशन का सेकंड डेरिवेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स डबल डॉट लगाया। ओके वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, एक्सेलरेशन, इसलिए देखो वेलोसिटी का एक बार आप करोगे डेरिवेशन तो मिलेगा एक्सेलरेशन, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, v डॉट। ये डॉट्स है ना वो डेरिवेशन सिखाते हैं, यानी डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, दोनों सेम वर्ड है। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया 1 टाइम, ये हमने डिफरेंशिएट किया 2 टाइम, यानी पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं, और आगे हम इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे।
और इस टॉपिक के जो आज हमने फॉर्मूला सीखे उसका भी थोड़ा रिवीजन करेंगे। आज के लिए आप इतना नोट डाउन कर लो। अब बच्चों थोड़ा फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं जो हमने इस लेक्चर में स्टडी किए हैं, डिराइव किए हैं। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसे हम लर्न करेंगे ना। ओके, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ऐसा होगा एस x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t। और अगर हमें बात करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो ओनली वेलोसिटी, तो हम क्या सीखेंगे, dx बाय dt बच्चों, dx बाय dt, v इज इक्वल टू dx बाय dt। क्लियर, ये हो गया वेलोसिटी। याद रखना वर्ड जो है उसको ध्यान से समझना। एवरेज वेलोसिटी लिखा होगा ना, तो आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन लगाओगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बोला है तो आपको डिफरेंशिएट ही करना होगा। ओके, आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। आगे बात करते हैं, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब कि v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t, है ना। अब बच्चों फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको थियरी का स्टेप भी लिखना आ जाएगा। ओके, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो याद रखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी तरह आप लर्न करिए, इसी तरह आप बोलिए और लर्न करिए। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो ओनली एक्सेलरेशन, ये दो में से कोई भी वर्ड लिखा होगा तो आपको करना क्या है, आपको वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कभी कभी बच्चों न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको पोजीशन गिवन होता है। क्या गिवन होता है, पोजीशन। आपको सिंपल ये फॉर्मूला गिवन होता है एक्स का टी के फॉर्म में। अगर पार्टिकल वाई की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आपको वाई ऑफ टी भी गिवन हो सकता है ना। तो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी, जो आपका या तो dx by dt हो सकता है या तो आप निकाल सकते हो dy by dt। ये आपका बनता है वेलोसिटी। अगर आपको y ऑफ t या तो x ऑफ t एज अ पोजिशन गिवन है, आपको पूछा गया कि वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी बात करी है, तो बच्चों आपको डेरिवेशन ही करना होता है, डिफरेंशिएशन ही करना होता है। अब बोले कि एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करोगे, dv बाई dt, यानी आपने जो वेलोसिटी निकाला है ना उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने थियरी में ऐसा सिंबल सीखे थे, v इक्वल टू एक्स डॉट एंड a इक्वल टू v डबल डॉट, मतलब कि अरे v डॉट एंड x डबल डॉट। यानी पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेशन क्या होता है, वेलोसिटी। देखिए पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेशन क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, इस तरह से। और पोजीशन का सेकंड डेरिवेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो बच्चों इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज डू लर्न दिस फॉर्मूलास।